privatize IDBI Bank. Strong condemnation from AIBA General Secretary C.H. Venkatachalam to Union Government. At his office located on Lingichetti Street in Chennai, AIBA General Secretary C.H. Venkatachalam gave an exclusive interview to our Adirvalai TV reporter. During the interview, he stated, the Union Government must drop its attempt to privatize IDBI Bank. If it fails to do so, we will launch a massive protest against the Union Government, he declared, registering his strong condemnation. The employees and officers of IDBI Bank, they are going on strike, one day All India protest strike on the 11th August throughout the country. From the All India Bank Employees Association, we are extending our full support to that strike because there is a big history behind this bank. In 1964, from Reserve Bank of India, this long-term development financial institution was created in the name of Industrial Development Bank of India, IDBI. In 1964, it was Reserve Bank Department, then it became Reserve Bank subsidiary, later it became the government bank. And later, this IDBI started one IDBI Bank as a subsidiary. And later, the IDBI also was closed. Even though in our country, development finance is very important. It is only one DFI, Development Financial Institution, only one that was closed. And that was merged with the IDBI Bank. And today, this IDBI Bank is working as a commercial bank with 1,500 branches and about 3 lakh crore deposit in that bank. 2 years ago, the government announced, Finance Minister announced in the budget that they intend to sell this bank by disinvesting the capital to some private people. Since then, these efforts are going on. And now, in the meantime, in IDBI Bank, the government disinvested its capital in favor of the LIC. So, LIC is an investor and government is also an equity shareholder. Together, today they are having 95% capital, LIC and the government. Now, they want to reduce it and they want to bring it to 34%. LIC government from 95 it will become 34. That means the 66% of capital will be sold to private people. And so they have offered to sell this and various bids are coming. Surprisingly, not only Indian bidders from Canada, Dubai, Singapore, lot of bids are coming and the government is now processing that sale of the share of IDBI Bank. That means government LIC share will be sold to these people. So it is not only privatization of a public sector bank, it is actually foreignization. This is in tune with these various trade agreement that has been signed with America, with United Kingdom, with also European Union. And so they are inviting more and more capital into India, including in the banking, financial, insurance sector. And so now, if any one of them will buy this bank, it will not only become a private bank, it will become a foreign bank. And that is the danger. That means the government is now shedding its responsibility. It will keep only 15% of the capital. LIC will keep another 18-19%, together 34%. 66% of the capital will be sold to some private. It may be Canada investor, it may be Dubai investor, it may be Singapore investor, some foreign investor. That means the bank will become a foreign bank. And the foreign bank, it becoming a foreign bank doesn't mean it is going to be an efficient bank. We know the history in Arshad Mehta fraud and many other scams. Many of the foreign banks are involved. I don't want to tell the name. Many foreign banks are involved. It has come out in the Joint Parliamentary Committee report, etc. So it is very dangerous to hand over the public money or a public sector bank to a private capital or to a foreign capital. But still the government, they are trying to do that. So to express our protest and opposition and demanding that this should not be done. Because we want to again recall here in 2003, December, at the time also BJP was in power. Mr. Jaswant Singh was the finance minister. So when IDBI was to become the IDBI Bank, when the act was repealed, there are a lot of protests
that you should not do. So he gave an assurance, and that is documented in the records of the parliament proceeding, that at any point of time, government will keep minimum 51% in the IDBI bank. This is the assurance in the parliament. But now they want to bring it down to 15%, and 66% will be private capital. That means the bank will become a private bank, rather it will become foreign bank. So this is not good, rather it is a retrograde. So we are opposing that, and we want the government to review their stand, to continue this bank as it is, and to express this protest on 11th of August. Employees and officers of the IDBI bank, they are going on strike on 11th of August during the parliament session. So from the All India Bank Employees Association, we are extending our support. Our sister organization, All India Bank Officer Association, they are also extending the support. In addition, unions in LIC and also in the general insurance and LIC, 6 unions in the financial sector, we are also supporting them, and we want the government to stop this. And if they don't do that, if they proceed further, during the winter session of the parliament in December 2025, then we will be compelled to go for all bank strike, all financial sector strike, and that is why we hope that government will understand the gravity and review the decision and not hand over this bank to either a private investor or a foreign investor. We wish this strike all success. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைब பண்ணுங்க। बैंक जो है सरकार का मतलब 1964 से अभिन्न अंग था, और अभी तक हम लोग सरकार और LIC दोनों के शेयर होल्ड मतलब मैक्सिमम 95% शेयर होल्डिंग था। लेकिन अब सरकार जो है नए निर्णय के अनुसार सरकार अपना 61% शेयर जो है वो किसी फॉरेन या किसी प्राइवेट फर्म को बेचना चाह रही है। और IDBI पिछले 5 साल से हमेशा प्रॉफिट कर रही है, तो एक प्रॉफिट PSU को मतलब निजी हाथों में बेचना ये हमारे लिए अन्याय है। और हम लोग लगभग 15,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे भविष्य को खतरा है। हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से कॉमन पीपल्स को सर्व कर रहे हैं अपने बैंक के माध्यम से, उसी तरह हम मतलब सरकार के अभिन्न अंग बन करके सभी लोगों को सर्विस दे, सर्व करें। और गांव से गांव वाले क्षेत्र में, सुदूर से सुदूर क्षेत्रों में हम बैंकिंग सेवा को प्रदान करें, और सरकार के सभी योजनाओं को हम वहाँ पर हम लोग क्रियान्वित कर पाएँ, और ताकि हम कॉमन पीपल्स को सर्व कर पाएँ। और हमारे बैंक में अभी भी रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, RTI है और विजिलेंस है, सब कुछ है, जो एक प्राइवेट फर्म होने के बाद ये सारे मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो हम इस तरह से सरकार के अभिन्न अंग बन करके सरकार का सेवा करना चाहते हैं। हाँ, लिखित रूप से मेमोरेंडम हमारे हेड ऑफिस मुंबई ने दिया है। मैडम, मैं IDBI बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। तो नेशनल सेक्रेटरी हमारे विठल कोटेश्वर राव है। हम लोग जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं, हम लोग एक दिन का ये टोकन स्ट्राइक आज 11 अगस्त 2025 को कर रहे हैं। इसका रीज़न है कि बैंक जो है हमारा पिछले 5 साल से प्रॉफिट में है। इस साल हम लोग का, इस क्वार्टर में हम लोग का प्रॉफिट 7,515 करोड़ हुआ है। तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रहे हैं कि इस बैंक को किसी फॉरेन प्लेयर के पास बेच दिया जाए। तो हम लोग इसका अपोज कर रहे हैं। हम लोग जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उसका अपोज कर रहे हैं, और जो हम लोग का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है SC ST OBC, पर्टिकुलरली मैं नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से बोलूँगा, हमारे यहाँ ट्राइबल्स बहुत है हर स्टेट में, त्रिपुरा हो, मिज़ोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, मेघालय हो। तो हम लोग उनका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको कंटिन्यू करने के लिए, और जो हमारा जो वर्क जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि हम लोग सब सरकारी एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो जो जॉब सिक्योरिटी है उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और इसीलिए हम लोग ये स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पैन इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरला, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश, हर ब्रांच आज ऑलमोस्ट बंद है। लेकिन जो प्रोवेशन में है या जो इनका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, हम लोग एज सपोर्ट हम लोग वी हैव आस्क्ड देम टू नॉट पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक, क्योंकि उनका फिर प्रमोशन में मतलब उनका कंफर्मेशन में प्रॉब्लम होता है। नहीं तो हम लोग ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये स्ट्राइक सबके लिए मतलब हम लोग चाहते हैं कि पैन इंडिया सब हम लोग को सपोर्ट करें। ये मेमोरेंडम ऑलरेडी हम लोग के जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उनके पास भेजे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजे हैं। ऑलमोस्ट 41 MPs ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हम लोग ऑलरेडी पर्सनली मिल के आए हैं।
लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी से मिलकर हैं और ऑलरेडी पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन रेज किया गया है। तो वी आवर ओनली डिमांड इज सेव IDBI बैंक। IDBI Bank long live! Long live! Weapon Officer CVT Zindabad! Comrades march on! Comrades march on! Struggle ahead, march on! Struggle ahead, march on! Privatization of IDBI Bank, we oppose! My name is Vittal Koteshwar Rao. I am representing All India IDBI Officers Association as National General Secretary, and I am joint convener for United Forum of IDBI Officers and Employees. Today, that is August 11, 2025, under the banner of United Forum of IDBI and Officers, across the country, we are constrained to observe one-day strike call against the proposed sale of IDBI Bank by Government of India and LIC of India to private and foreign players. And this agitation program is happening since 2015 September, when late Shri Arun Jaitley, the then Finance Minister, has announced to reduce central government shareholding in IDBI Bank below 50%. And now the Ministry of Finance, DIPAM, Department of Investment and Public Asset Management, they have already initiated the bid process since October 2022, and they have completed the technical bid process, and there are likely chances of inviting the financial bid in the month of November or December 2025. So we have been requesting central government to reconsider their decision, because handing over government-owned banks, public sector banks to private or foreign players is against the interest of the depositors, against the interest of the small borrowers, mudra borrowers, and against the interest of the students who are getting the education loans, unsecured education loans from public sector banks and government-owned banks. And government-owned banks and public sector banks are giving loans to agriculturists, crop loans, Kisan credit card. All these depositors, small borrowers, agriculturists, students, they are going to face problem. And private and foreign banks, they will increase the minimum balance. Whatever today we are offering zero balance, Atal Pension Yojana, Social Security Services, all will come to a threat, and it is against the interest of the general public and common man. We seek support from the general public and common man in our struggle, and we are confident that we can stop this proposed sale. Thank you. Today, whom you are going to give a memorandum to today's? We have already submitted memorandum to Honorable Finance Minister. Once again, we will be submitting to the memorandum to Secretary Deepam, Department of Investment, Public and Management, because they are only doing the process of strategic decision, friend, to the extent of 60%. It is nothing but sale of a government bank, which never happened in our country. Sir, if not, are you going to a legal procedure? Legal process as of now we have not triggered. As and when it is warranted, we will be triggering the legal process. Today we are observing one-day strike call in IDBI Bank, and we hope government will reconsider their decision and stop the inviting financial bids. If they are going ahead for financial bids, we will be constrained to take the support from the entire banking industry under the banner of United Forum of Bank Unions, comprising all government banks and private banks to the tune of 7 lakhs plus employees, and entire banking industry is going for national representing United Forum of IDBI Officers and the government is not reconsidering their decision. I am representing as National General Secretary, All India IDBI Officers Association. ನನ್ನ ಹೆಸರು PGR ಬರ್ಜಿಂಕಾಯ.
ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಏನು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೇ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಪ್ಷನ್. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲಗಳಿದೆ, 20 ವರ್ಷದ್ದು 30 ವರ್ಷದ್ದು ಅಂತ ಲೋನನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಬಂದಾಗ ಈ ರಿಕವರಿ ಯಾವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಏನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಆಗದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸಿಗೆ ಬಂತು. ಆಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ LIC ಅವರು ಬಂದು 27,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಗತವಾಯಿತು. ಈ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಗಂಧವತಿಯವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗ LIC ಅವರು 46% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಇರುವುದು ಬರೀ 36%. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ 22ನೇ ವರ್ಷದ 22, 23, 24, 25ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಡಕೇಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. जोर से बोलो, कोल घोटाला, सिंचाई घोटाला, अजित पवार, इरिगेशन घोटाला, अजित पवार, नीरव मोदी, बैंक घोटाला, बॉन्ड घोटाला, बीजेपी सरकार, वेपन घोटाला, सूरज चौहान, मैं भी बोलूं, तुम भी बोलो, जोर से बोलो, ताली बजा के, झूम के बोलो, गा के बोलो, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, बैंक घोटाला, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अजित पवार, सिंचाई घोटाला, बैंक घोटाला, जोर से बोलो, लैंड घोटाला, ह्यूमन रिसोर्स, बैंक घोटाला, लैंड घोटाला, ह्यूमन रिसोर्स, वेपन स्कैम, बैंक स्कैम, लैंड स्कैम, शेयर स्कैम, जोर से बोलो, मैं भी बोलूं, कौन स्कैम, पतन स्कैम, MP सरकार, बैंक स्कैम, पतन स्कैम, MP गवर्नमेंट, जोर से बोलो, चिक्की घोटाला, पंकज मुंडे, चिक्की घोटाला, वेपन स्कैम, सूरज चौहान, लैंड घोटाला, हेमंत बिस्वा, लैंड घोटाला, हेमंत बिस्वा, मेहुल चौकसी, बैंक घोटाला,
कौन घोटाला, इसके चेयरमैन बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, जोर से बोलो, ताली बजा के जोर से बोलो, ताली बजा के लैंड स्टैम्प, फूड स्टैम्प, बैंक स्टैम्प, ट्रेड स्टैम्प, लैंड स्टैम्प, फूड स्टैम्प, चेन स्टैम्प, फूड स्टैम्प, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आज क्या है हड़ताल, 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 आईटीबीआई हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, पूरे नागपुर हड़ताल, पूरे मुल्क में हड़ताल, आईटीबीआई में हड़ताल, एक दिन की हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, मुंबई में हड़ताल, जोधपुर हड़ताल, मैसूर हड़ताल, तुम भी बोलो हड़ताल, एक दिन की हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, मुंबई में हड़ताल, कोलकाता हड़ताल, जोधपुर हड़ताल, चेन्नई में हड़ताल, मैसूर हड़ताल, केरल में हड़ताल, तमिलनाडु हड़ताल, यूपी में हड़ताल, बिहार में हड़ताल, झारखंड में हड़ताल, सिक्किम में हड़ताल, एपी में हड़ताल, जेल में हड़ताल, एक दिन की हड़ताल, आईटीबीआई में हड़ताल, आईटीबीआई में हड़ताल, मैसूर हड़ताल, कानपुर हड़ताल, हम तो बोलो हड़ताल, तुम बोलो हड़ताल, जोर से बोलो हड़ताल, एक दिन की हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, आईटीबीआई में हड़ताल, 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 एक दिन की हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, धर्म पे हड़ताल, सदर में हड़ताल, इतवारी हड़ताल, कटिगुड़ा में हड़ताल, मोहनगर हड़ताल, धर्म पे हड़ताल, सुरेंद्रनगर हड़ताल, सदर में हड़ताल, दस्त पे हड़ताल, एक दिन की हड़ताल, आईटीबीआई में हड़ताल, एक दिन की हड़ताल, नागपुर में हड़ताल, म्यांमा हड़ताल, बैंकों में हड़ताल, मुंबई में हड़ताल, चेन्नई में हड़ताल, कलकत्ता हड़ताल, बेंगलुरु में हड़ताल, जोधपुर हड़ताल, 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 एक दिन की हड़ताल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑफिसर्स यूनिटी जिंदाबाद, 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 आज की हड़ताल जिंदाबाद, 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 आईटीबीआई कॉमरेडों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, आईटीबीआई कॉमरेडों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 हमारी ताकत जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 मास बैंकिंग जिंदाबाद, 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 फाइनेंशियल सेक्टर जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 नमस्कार, मैं आईपीएम न्यूज और पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और आप देख सकते हैं ये संविधान चौक पे जो आईडीबीआई बैंक के एम्प्लॉइज है उनका ये आंदोलन चालू है, धरना प्रदर्शन चालू है। ये सभी जो है आईडीबीआई के एम्प्लॉइज है और देखिए आप सेव आईडीबीआई में अपोजिशन ऑफ आईडीबीआई बैंक, आप देख सकते हैं ये सब आईडीबीआई बैंक के ये एम्प्लॉइज है और इनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू है संविधान चौक पे। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से और कई दिनों से इनका ये आंदोलन जो है चालू है आईडीबीआई बैंक का। आपका क्या नाम है? स्वयं प्रकाश तिवारी। किस मांग को लेकर आप ये आंदोलन कर रहे हो? आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन के जो सरकार का संघर्ष चल रहा है आईडीबीआई को प्राइवेटाइज करने का, उसके अगेंस्ट हमारी ये लड़ाई है। आईडीबीआई ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बैंक है। किसी भी सरकार को प्रॉफिट मेकिंग संस्था को प्राइवेट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर लॉस मेकिंग रहती और कुछ ऐसे कारण रहते कि जिसके कारण आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन अगर सरकार करती थी तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रॉफिट मेकिंग संस्था है उसको सरकार अपने प्रयासों द्वारा प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। इसके अगेंस्ट हमारी आम जनता आईडीबीआई और बाकी के सभी जो बैंक के ट्रेड यूनियंस है आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्ट्राइक कर रहे हैं।
मुनाफे पे चल रही है, नफा भी है, सब है और सभी अच्छी तरह से चल रहा है आईडीबीआई का, उसके बावजूद सरकार क्यों इसको निजीकरण करना चाह रहा है? सरकार का मुख्य मुद्दा ही निजीकरण है, वो आईडीबीआई बैंक हो या बाकी सारे उद्योग हो। और धीरे धीरे ये संघर्ष, धीरे धीरे ये प्रयास सरकार के सभी बैंकों की तरफ जाने वाले हैं। इसीलिए इसकी शुरुआत में ही हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं और स्ट्राइक करके सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट करना यह आपके लिए ठीक नहीं है और सारी ट्रेड यूनियन रास्ते पर आकर इसको अपोज करेगी। तिवारी सर, ये बताइए कि आईडीबीआई जो बैंक है वहां पे कितने एम्प्लॉयज है पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें तो? हम ऑल ओवर इंडिया 18,000 एम्प्लॉयज हैं जो आईडीबीआई बैंक के हैं, उसमें ऑफिसर्स, क्लरिकल कैडर सभी हैं। आपकी क्या मांग है अभी? हमारी ये मांग है कि इसका प्राइवेटाइजेशन होना नहीं चाहिए और प्राइवेटाइजेशन अगर होता है एआईबीए के माध्यम से सारी संगठन इसके साथ खड़ी रहेगी, आईडीबीआई के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। आईडीबीआई जो है वो उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आप आंदोलन कर रहे हो। आपका नाम बताइए। विलास लांजेवार, आईडीबीआई बैंक। निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो स्मूथ चल रहा है, जो इतनी प्रॉफिट मेकिंग आईडीबीआई बैंक है, उसके बाद में इसका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। सभी एम्प्लॉय की सेवा शर्तें हैं, सभी एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है और उसके बाद में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट वाला क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, एम्प्लॉय कम कर सकता है। ये प्राइवेटाइजेशन के जो भी क्या बोलते विरोधक जो है, तो विरोध के लिए हम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये आज का हड़ताल कर रहे हैं और थ्रू आउट इंडिया में ये हड़ताल चालू है आईडीबीआई बैंक का। आईडीबीआई बैंक जिंदाबाद, आईडीबीआई बैंक जिंदाबाद, ऐसे नारे लग रहे हैं, घोषणाबाजी हो रही है ऑल ओवर इंडिया में। हम अभी संविधान चौक पे नागपुर के। आपका नाम बताइए। जयवंत गुरुवे, मैं चेयरमैन ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का। जैसे अभी हमारे मित्र तिवारी जी ने बताया कि ये जो बैंक प्रॉफिट में है, आपके जानकारी के लिए आईडीबीआई का 3 लाख करोड़ रुपया, आज की तारीख में 3 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट है और 23, 24, 2025 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,000 करोड़ रुपया। इसके बावजूद भी ये जो सरकार है, इनका धोरण ही है कि प्राइवेटाइजेशन करना है सभी सेक्टर में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले भी हमारी जो साउथ की एक बैंक थी लक्ष्मी विलास बैंक, इसको भी एक सिंगापुर की जो प्राइवेट इन्वेस्टर था उन्होंने खरीदा और आज का उसका क्या हाल है। उसके बाद में दूसरी एक पब्लिक सेक्टर बैंक कैथलिक सीरियन बैंक को भी एक कनाडा के प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट जो ये है तुम्हारे इन्वेस्टर्स है, उन्होंने खरीदा और आज उसका क्या हाल है। इसी प्रकार हमारा ये विरोध है कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आगे में इसकी परिस्थिति बहुत खराब होगी और ये सरकार का धोरण है, हम इसको निषेध करते हैं। और अगर ये आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो दूसरे भी जो बैंक जो है, दूसरे भी बैंक है, उसका हम जोर निरोध करके, प्राइवेटाइजेशन का पूर्ण निरोध करके रास्ते के ऊपर हम आएंगे। और इसके लिए हम कुछ भी क्या है, हड़ताल पे जाना रहा तो सभी बैंकों का हम हड़ताल करेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए जब आईडीबीआई बैंक में जमा है, इसके बावजूद भी इसका निजीकरण सरकार कर रहा है, क्या कारण है इसका? आपका नाम बताइए। मैं सुरेश बोभाटे, जनरल सेक्रेटरी ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। 3 लाख करोड़ रुपया प्रॉफिट होने के बाद, 3 लाख करोड़ रुपया प्रॉफिट नहीं है, डिपॉजिट होने के बाद प्राइवेट क्यों कर रहे, यही तो क्वेश्चन बड़ा है। जिस दिन प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ये 3 लाख करोड़ रुपया किसके कंट्रोल में आएगा? जो इस बैंक को खरीदेगा। बैंक खरीदा कब घोषित किया जाता है? जब इस बैंक के जो शेयर्स है वो 51% से ज्यादा, जब कोई प्राइवेट पार्टी, कोई कारपोरेट, कोई बाहर की बैंक जब खरीद लेती है तब होती है प्राइवेट। और वंस कोई भी बैंक प्राइवेट हो गई तो उसके बाद में उनका मोटो रहता है सिर्फ नफा कमाना। सोशल एंगल के लिए बिल्कुल उनके पास में कोई प्रावधान नहीं रहता, ये इतिहास गवाह है। और इसी के कारण ये अभी हम संविधान चौक में है, संविधान में इसका क्लियर उल्लेख है कि कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में, चंद लोगों के हाथ में पब्लिक की जमा की हुई पूंजी नहीं जाने को होना, ये सरकार के पास रहने को होना, ताकि वो चैनलाइज कर सके इन द फॉर्म ऑफ लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, गरीब लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए। अभी पता नहीं सरकार का या दिमाग ठिकाने है या उनके कुछ क्या कैलकुलेशंस है,
ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर ये लेबर यूनियन के दिमाग में है कि ये गलत हो रहा है तो ये बात वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या कंपल्शन है सरकार के ऊपर? आप क्या करोगे सर? लेबर यूनियन के पास में रास्ते पर आके संघर्ष करना, स्ट्राइक करना, इसके सिवा संवैधानिक हक है। यह हमारा संवैधानिक हक है, इसके सिवा कुछ नहीं बचता। ये हम हिंदुस्तान के जितने लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने लेबर है, हम 40 करोड़ है। 40 करोड़, ये दुर्भाग्य की बात है मात्र कि वो यूनाइटेड नहीं है। पूरे टोटल जो बैंक है उसके बैंक के तो 5-6 लाख है अभी। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर 18-20 हजार है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में 50-60 हजार है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है। सबको मिला के हम एक जमाने में 10 लाख हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट की नीति के कारण शायद उनको प्राइवेटाइज करना है। बैंक की भर्ती कई दिनों से बंद थी, अभी थोड़ा थोड़ा वो ले रहे हैं, भले ही कस्टमर को असुविधा हो रही है, लेकिन इनका जो सोल उद्देश्य है कि क्लर्क्स लेना नहीं, चाहे वो आईडी बैंक हो। देखो ना, आईडी बैंक में जितने चेहरे दिखेंगे आपको, कोई भी यहाँ 35 साल के अंदर नहीं है। तो आईडीबीआई बैंक के तो कई सालों से शायद रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। ये सेम स्थिति सभी जगह पर है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी है और इनका एक ही कहना है कि 3 लाख करोड़ जो है आईडीबीआई बैंक में जमा है और आईडीबीआई बैंक जो है वो नफे में है, घाटे में नहीं है। इसके बावजूद सरकार जो है इसका निजीकरण करना चाह रहा है। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण हम होने नहीं देंगे। इसी मांग को लेकर आज पूरे देश में आईडीबीआई बैंक के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो रास्ते पे उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर के संविधान चौक पे पर भी ये आंदोलन आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों का शुरू है। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, जोर से बोलो, मोदी सरकार, तानाशाही, मोदी सरकार, नागेशाही, मोदी सरकार, विकटशाही, मोदी सरकार, प्राइवेटाइजेशन, जोर से बोलो, ताली बजा के, झूम के बोलो, मोदी सरकार। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं IBM TV 9 न्यूज और WH न्यूज में आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक में हूँ और आप देख सकते हैं ये संविधान चौक पे जो आईडीबीआई बैंक के एम्प्लॉइज है, उनका ये आंदोलन चालू है, धरना प्रदर्शन चालू है। ये सभी जो है आईडीबीआई के एम्प्लॉइज है और देखिए आप सेव आईडीबीआई भी अपोजिशन ऑफ आईडीबीआई बैंक, आप देख सकते हैं ये सब आईडीबीआई बैंक के ये एम्प्लॉइज है और इनका यहाँ पे धरना प्रदर्शन चालू है संविधान चौक पे। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से और कई दिनों से इनका ये आंदोलन जो है चालू है आईडीबीआई बैंक का। आपका क्या नाम है? स्वयं प्रकाश तिवारी। किस मांग को लेकर आप ये आंदोलन कर रहे हो? आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन के जो सरकार का संघर्ष चल रहा है आईडीबीआई को प्राइवेटाइज करने का, उसके अगेंस्ट हमारी ये लड़ाई है। आईडीबीआई ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग बैंक है। किसी भी सरकार को प्रॉफिट मेकिंग संस्था को प्राइवेट करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर लॉस मेकिंग रहती और कुछ ऐसे कारण रहते कि जिसके कारण आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन अगर सरकार करती थी तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रॉफिट मेकिंग संस्था है उसको सरकार अपने प्रयासों द्वारा प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। इसके अगेंस्ट हमारी आम जनता आईडीबीआई और बाकी के सभी जो बैंक के ट्रेड यूनियंस है आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्ट्राइक कर रहे हैं। मुनाफे पे चल रही है, नफा भी है, सब है और सभी अच्छी तरह से चल रहा है आईडीबीआई का। उसके बावजूद सरकार क्यों इसको निजीकरण करना चाह रहा है? सरकार का मुख्य मुद्दा ही निजीकरण है, वो आईडीबीआई बैंक हो या बाकी सारे उद्योग हो। और धीरे धीरे ये संघर्ष, धीरे धीरे ये प्रयास सरकार के सभी बैंकों के तरफ जाने वाले हैं। इसीलिए इसकी शुरुआत में ही हम लोग इसको अपोज कर रहे हैं और स्ट्राइक करके सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट करना यह आपके लिए ठीक नहीं है और सारी ट्रेड यूनियन रास्ते पर आकर इसको अपोज करेगी। तिवारी सर, ये बताइए कि आईडीबीआई जो बैंक है
वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज है पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर बात करें तो? हम ऑल ओवर इंडिया 18,000 एम्प्लॉयज हैं जो आईडीबीआई बैंक के हैं, उसमें ऑफिसर्स, क्लरिकल कैडर सभी हैं। आपकी क्या मांग है अभी? हमारी ये मांग है कि इसका प्राइवेटाइजेशन होना नहीं चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन अगर होता है एआईबीए के माध्यम से सारी संगठन इसके साथ खड़ी रहेगी, आईडीबीआई के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। आईडीबीआई जो है वो उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आप आंदोलन कर रहे हो। आपका नाम बताइए। विलास लांजेवार, आईडीबीआई बैंक। निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो स्मूथ चल रहा है, जो इतनी प्रॉफिट मेकिंग आईडीबीआई बैंक है, उसके बाद में इसका निजीकरण क्यों कर रहे हैं? नहीं होना चाहिए। सभी एम्प्लॉय की सेवा शर्तें हैं, सभी एम्प्लॉय को पेंशन मिल रही है, और उसके बाद में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट वाला क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, एम्प्लॉय कम कर सकता है। ये प्राइवेटाइजेशन के जो भी क्या बोलते विरोधक जो है, तो विरोध के लिए हम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये आज का हड़ताल कर रहे हैं। और थ्रू आउट इंडिया में ये हड़ताल चालू है आईडीबीआई बैंक का। आईडीबीआई बैंक जिंदाबाद। आईडीबीआई बैंक जिंदाबाद, ऐसे नारे लग रहे हैं, घोषणाबाजी हो रही है ऑल ओवर इंडिया में। हम अभी संविधान चौक पे नागपुर के। आपका नाम बताइए। जयवंत कुरुवे, मैं चेयरमैन ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का। जैसे अभी हमारे मित्र तिवारी जी ने बताया कि ये जो बैंक प्रॉफिट में है, आपके जानकारी के लिए आईडीबीआई का 3 लाख करोड़ रुपया, आज की तारीख में 3 लाख करोड़ रुपया डिपॉजिट है, और 23-24 2025 3 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3,000 करोड़ रुपया। इसके बावजूद भी ये जो सरकार है, इनका धोरण ही है कि प्राइवेटाइजेशन करना है सभी सेक्टर में। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले भी हमारी जो साउथ की एक बैंक थी लक्ष्मी विलास बैंक, इसको भी एक सिंगापुर की जो प्राइवेट इन्वेस्टर था उन्होंने खरीदा, और आज का उसका क्या हाल है। उसके बाद में दूसरी एक पब्लिक सेक्टर बैंक कैथलिक सीरियन बैंक को भी एक कनाडा के प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट जो ये है तुम्हारे इन्वेस्टर्स है, उन्होंने खरीदा, और आज उसका क्या हाल है। इसी प्रकार हमारा ये विरोध है कि आईडीबी बैंक प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे में इसकी परिस्थिति बहुत खराब होगी, और ये सरकार का धोरण है, हम इसको निषेध करते हैं। और अगर ये आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो दूसरे भी जो बैंक जो है, दूसरे भी बैंक है, उसका हम जोर निरोध करके, प्राइवेटाइजेशन का पूर्ण निरोध करके रास्ते के ऊपर हम आएंगे। और इसके लिए हम कुछ भी क्या है, हड़ताल पे जाना रहा तो सभी बैंकों का हम हड़ताल करेंगे। 3 लाख करोड़ रुपए जब आईडीबीआई बैंक में जमा है, इसके बावजूद भी इसका निजीकरण सरकार कर रहा है, क्या कारण है इसका? आपका नाम बताइए। मैं सुरेश बोभाटे, जनरल सेक्रेटरी ईस्टर्न महाराष्ट्र बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। 3 लाख करोड़ रुपया प्रॉफिट होने के बाद, 3 लाख करोड़ रुपया प्रॉफिट नहीं है, डिपॉजिट होने के बाद प्राइवेट क्यों कर रहे, यही तो क्वेश्चन बड़ा है। जिस दिन प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ये 3 लाख करोड़ रुपया किसके कंट्रोल में आएगा? जो इस बैंक को खरीदेगा। बैंक खरीदा कब घोषित किया जाता है? जब इस बैंक के जो शेयर्स है वो 51% से ज़्यादा, जब कोई प्राइवेट पार्टी, कोई कारपोरेट, कोई बाहर की बैंक जब खरीद लेती है, तब होती है प्राइवेट। और वंस कोई भी बैंक प्राइवेट हो गई तो उसके बाद में उनका मोटो रहता है सिर्फ नफ़ा कमाना। सोशल एंगल के लिए बिल्कुल उनके पास में कोई प्रावधान नहीं रहता, ये इतिहास गवाह है। और इसी के कारण ये अभी हम संविधान चौक में है, संविधान में इसका क्लियर उल्लेख है कि कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में, चंद लोगों के हाथ में पब्लिक की जमा की हुई पूंजी नहीं जाने को होना, ये सरकार के पास रहने को होना, ताकि वो चैनलाइज कर सके इन द फॉर्म ऑफ लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, गरीब लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए। अभी पता नहीं सरकार का या दिमाग ठिकाने है या उनके कुछ क्या कैलकुलेशंस है, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा। अगर ये लेबर यूनियन के दिमाग में है कि ये गलत हो रहा है, तो ये बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही? क्या कंपल्शन है सरकार के ऊपर? आप क्या करोगे? सर, लेबर यूनियन के पास में रास्ते पर आके संघर्ष करना, स्ट्राइक करना, इसके सिवा, ये हमारा संवैधानिक हक है, इसके सिवा कुछ नहीं बचता। ये हम हिंदुस्तान के जितने लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने लेबर है, हम 40 करोड़ है। 40 करोड़, ये दुर्भाग्य की बात है मात्र
कि वो यूनाइटेड नहीं है। पूरे टोटल जो बैंक है नहीं, बैंक के तो 5-6 लाख है अभी। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर 18-20 हज़ार है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में 50-60 हज़ार है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है। सबको मिला के हम एक ज़माने में 10 लाख हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट की नीति के कारण शायद उनको प्राइवेटाइज करना है। बैंक की भर्ती कई दिनों से बंद थी, अभी थोड़ा थोड़ा वो ले रहे हैं, भले ही कस्टमर को असुविधा हो रही है, लेकिन इनका जो सोल उद्देश्य है कि क्लर्क्स लेना नहीं, चाहे वो आईडी बैंक हो। देखो ना, आईडी बैंक में जितने चेहरे दिखेंगे आपको, कोई भी यहाँ 35 साल के अंदर नहीं है। तो आईडीबीआई बैंक के तो कई सालों से शायद रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। ये सेम स्थिति हुई सभी जगह पर है। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी है और इनका एक ही कहना है कि 3 लाख करोड़ जो है आईडीबीआई बैंक में जमा है और आईडीबीआई बैंक जो है वो नफे में है, घाटे में नहीं है। इसके बावजूद सरकार जो है इसका निजीकरण करना चाह रहा है। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण हम होने नहीं देंगे। इसी मांग को लेकर आज पूरे देश में आईडीबीआई बैंक के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो रास्ते पे उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नागपुर के संविधान चौक पर भी ये आंदोलन आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों का शुरू है। आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार। उल्लू बोला गेंडा बोला, सगळे सारखे लेते कातडी गेंड्याची जाळी आहे। अरे हम बैंक बंद करेंगे, अंदर उल्लू काम करेंगे। हम बैंक बंद करेंगे, अंदर उल्लू काम करेंगे। Just and right, just and right. Our body just and right, just and right, just and right. Our selling a body bank, we oppose, we oppose, we oppose. Our selling a body bank, we oppose, we oppose, we oppose. Our privatization धोखा है, धोखा है, धोखा है. Our privatization धोखा है, धोखा है, धोखा है. इन्कलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. आता आपण नाश्ता करूया, आवाजी नाश्ता चहा. क्या बात है।